Now the third is the parties must be competent to contract. This is the capacity of parties. Section 11 says who are competent to contract. Every person is competent to contract who is of age of majority. Majority age कितनी होगी? As per the Majority Act जो होगा, according to law to which he is subject, and who is of sound mind and is not disqualified from contracting any law. मीनिंग देयर बाय 3 कंडीशंस हैं. जनरली हम सोचते हैं कि 2 ही कंडीशन है, मेजर होना चाहिए तो साउंड माइंड होना चाहिए. नो, देयर आर 3 कंडीशंस. समटाइम्स पर्सन इज अ मेजर and sound mind also, but still he is not competent to contract because he is disqualified by the law. Insolvent हो गया है या conviction हो गई है, whatsoever. So 3 conditions must be there. He must be major. क्यों लिखा है? Why this the party must be major? Because only if he is a major he can be able to understand the nature and consequences of the contract. मेजर होगा तो उसके बेनिफिट्स या प्रॉज एंड कॉन्स को समझ सकेगा. कैन माइनर एंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट? व्हाट इज द फेट ऑफ an agreement entered into by the minor? It has been detailed discussed in Mohri Bibi versus Dharmoda case, where it was held that it is void ab initio. Why? What is the rationale behind this? कि minor is not allowed to enter into a contract, or if he enter into an agreement with somebody, his agreement is void ab initio. What is the rationale? Court said that minor is not mature enough to understand the consequences. For that, अगर उसने कोई कर दिया है तो that his agreement is void ab initio. Second, for the protection of the rights of the minor, the court said that his agreement is void. क्योंकि यहाँ पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या कहता है कि पार्टीज मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट. ये तो नहीं बताया कि भाई अगर इनकम्पिटेंट है फिर क्या होगा, तो वो इसमें बताया हुआ है कि ये होगा जी, दैट एग्रीमेंट इज void ab initio. And there is confusion also. Sometimes judges ask us in affidavits that he is minor, he cannot attest. मैं बड़ी बार बोलता हूँ where is the bar? It's an oath. 12 साल में अगर आप oath act में वो उसमें आ सकते हो. Usually judges अब 18 साल से कम affidavit लेते हैं, then nobody will attest. Yes. मुझे लगता है There is a difference between affidavit and contract and agreement. इफेक्ट ऑफ माइनर्स एग्रीमेंट. अब एग्रीमेंट तो कर दिए माइनर ने, अब उसका इफेक्ट क्या होगा? विल डिस्कस दैट. एक रैशनल और है इसके पीछे, व्हाई दिस एन एग्रीमेंट ऑफ माइनर इज void ab initio, बिकॉज सेक्शन 10 सेज इट मस्ट बी विद द फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज. तो कोर्ट कहता है कि भाई माइनर की कंसेंट मे नॉट बी फ्री. ए माइनर्स एग्रीमेंट बीइंग void, ordinarily it should be wholly devoid of all effects. As there is no contract, all the effects of minors agreement must be worked out independently of any contract. अब इसी में एक्सप्लेन की हुई हैं चीज़ें कि whether estoppel applies in case of minor. No estoppel applies in case. Estoppel क्या होता है? Rule of estoppel. One person is stopped From going back, from retracting back, from his promise he has made. Okay. Let's suppose you made some offer to somebody. The other party accepts. On his acceptance,
you have changed your stand. Now the other party cannot be allowed to go back. जैसे मेरे पास एक बड़ा that case is still चल रहा है अभी, that Mata Vaishno Devi Shrine Board has offered the person to make some contribution for the establishment of spiritual growth center. वहाँ मैंने एक पॉइंट लिया हुआ रूल ऑफ एस्टॉपल, contribution for construction of spiritual growth center. रिक्वायरमेंट क्या है, कंट्रीब्यूशन कितनी मांग रहे हैं, 5 लाख रुपीस, आज से 25 साल पहले. 5 लाख डोनेशन तो बड़ा रेयर है कोई देगा, है ना, चाहे जितना मर्जी बड़ा भक्त हो. बट कंट्रीब्यूशन के उनको भी पता था श्राइन बोर्ड को कि भाई नोबडी विल गिव सच ह्यूज अमाउंट. उसके साथ उन्होंने दे हैव assured to give some facilities. Facilities क्या थी, that the person who contributed this amount will be provided the lifetime membership of this spiritual growth center. एक चीज़ उसमें facilities क्या क्या है, अगर मेंबर बन गया लाइफ टाइम का तो आपको साल के 2-3 दिन आपका स्टे होगा ऊपर भवन में, आप स्पिरिचुअल ग्रोथ सेंटर में ये चीज़ें कर सकते हो. ऑन द एश्योरेंस ऑफ द बोर्ड, वन ऑफ माई क्लाइंट, he made a contribution, and now after the period of 12 to 13 years एक सर्कुलर निकालता है श्राइन बोर्ड that all the existing schemes which includes the spiritual growth center is hereby rescinded, revoked कर दीजिए. I filed a suit जो अभी at the verge of conclusion है, फाइनल आर्गूमेंट्स के लिए है कि भाई रूल ऑफ एस्टॉपले अप्लाइज टू देम अनलेस दे हैव मेड एन ऑफर कि भाई ये लाइफ टाइम मेंबरशिप है, ये है, तो आई मे नॉट एक्सेप्ट देयर ऑफर, मे नॉट गिव माई कंट्रीब्यूशन. इट इज़ ओनली ऑन देयर एश्योरेंस आई हैव एक्टेड अपॉन. वंस आई हैव एक्टेड अपॉन, नाउ दे आर रिस्ट्रेन्ड फ्रॉम गोइंग बैक टू देयर प्रॉमिस. बट नो एस्टॉपल अगेंस्ट द माइनर कि भाई इसने इसके कहने पे, माइनर के कहने पे वी हैव डन दिस, नाउ ही शैल बी स्टॉप्ड फ्रॉम गोइंग बैक, ही कैन गो बैक. नो रूल ऑफ एस्टॉपल अप्लाइज टू माइनर. Ratification of minor's agreement cannot be. Let's suppose minor entered into an agreement with somebody. On attaining the age of majority, can the minor ratify his earlier agreement? No. Ratification means it has the effect of from the date it was come into effect, जिस दिन साइन हुआ है. मतलब after attaining the age of majority, minor can enter into a new contract, but he cannot ratify his earlier act. क्योंकि जब इसने किया था that was void ab initio. The act which is the agreement which is void ab initio cannot become legal after attaining the age of majority. After attaining the age of majority, he can enter into a new contract. ये हो गया मेजॉरिटी का. सेकंड इज पर्सन मस्ट बी साउंड माइंड. What is sound mind for the purpose of contracting? That is very important. A person is said to be a sound mind for the purpose of making contract if at the time when he makes it, he is capable of understanding it and of forming a rational judgment as to its effect upon its interest. Sound mind means he is capable of understanding at the time of execution of that agreement. There can be a chances, कईयों को बीमारी होती है कि कौन सी होती है, एपिलेप्सी होती है, क्या होती है ना, दौरे पड़ते हैं. अगर पर्सन ठीक है बट कभी कभी उसको दौरे पड़ते हैं और ड्यूरिंग दैट दौरा टाइम ही एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट, दैट एग्रीमेंट इज void because at the time of execution
ही मस्ट बी अ साउंड पर्सन। एक पर्सन है जो पागल है बट कभी कभी ठीक हो जाता है, जब कभी कभी वो ठीक है तब उसने एग्रीमेंट किया, दैट एग्रीमेंट इज वैलिड। दिस इज योर कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। इसके बाद फ्री कंसेंट, दैट विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। एक चीज आप हाँ। काइंडली क्लियर कर दीजिए सर, वाइड, वाइडेबल, वाइड एब इनिशियो और इनवैलिड, हाँ। ये थोड़ा सा एक ब्रीफ। इट वुड बी बेटर कि क्वेश्चन 2-3 क्लासेस के बाद आता। Okay. नो नहीं, आई विल एक्सप्लेन यू। वाइड, वाइडेबल, वाइड एब इनिशियो, वाइड एब इनिशियो। वाइड और वाइडेबल भी एक चीज है है, सर, इनवैलिड भी एक आई विल एक्सप्लेन यू। वाइड और वाइडेबल में तो देयर शुड नॉट बी एनी कंफ्यूजन बिकॉज इट हैज़ बीन डिफाइंड इन सेक्शन 2। आई विल रीड सेक्शन 2 जी। वाइड तो इसमें दिया हुआ है, एन एग्रीमेंट नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज सेड टू बी वाइड। अब मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगा इसको। एन एग्रीमेंट विच इज नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज वाइड। सेक्शन 14 से आप 18-19 तक पढ़ोगे, उसमें लिखा हुआ है वाइडेबल और वाइड। दूसरा आ गया 2J। 2J आ गया, ए कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी एनफोर्सेबल बाय लॉ बिकम्स वाइड व्हेन इट सीजेस टू बी एनफोर्सेबल। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वाइड एंड वाइडेबल? वाइड तो हो गया, वाइड है, वाइड एग्रीमेंट कैनॉट बिकम ए कॉन्ट्रैक्ट, कैनॉट बी एनफोर्स्ड। वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, वाइडेबल एग्रीमेंट नहीं होता, वाइड एग्रीमेंट होता है, वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होता है। वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कैन बी एनफोर्स्ड। वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड, इज परफेक्टली वैलिड until you exercise your option to declare it void. For example, we entered into a contract, we both are major, competent to contract। मैं इसको कहता हूँ कि अपनी ज़मीन मेरे को भेज दे। ये ज़मीन मेरे को बेच देता है, मैं कंसिडरेशन अमाउंट देता हूँ, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। बाद में इसको लगता है कि भाई माई कंसेंट, बिकॉज कंसेप्ट क्या, फ्री कंसेंट, माई कंसेंट हैज़ बीन ऑब्टेन बिकॉज ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस। सर मेरे टीचर थे तो अनड्यू इन्फ्लुएंस किया और मेरी कंसेंट बिकॉज ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस ले ली। जब तक ये अपनी ऑप्शन, अब ऑप्शन किसके पास है? एट द ऑप्शन ऑफ द पर्सन हुज कंसेंट हैज़ बीन ऑब्टेन्ड बिकॉज ऑफ फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन। जब तक ये वो एक्सरसाइज नहीं करता है, दैट वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट जो हमने किया है, वाइडेबल तो है ना क्योंकि अंडर इन्फ्लुएंस किया, दैट इज परफेक्टली वैलिड। अगर ये केस फाइल ही नहीं करता है, दैट इज वाइड विच इज नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ। 2G कहता है कैन नॉट बी एनफोर्सेबल बाय लॉ, दैट इज ए वाइड। वो लिखा हुआ है एन एग्रीमेंट इन स्टेट ऑफ मैरिज, मैं एग्रीमेंट भी कर देता हूँ कि भाई तू कहीं और शादी नहीं करेगा, दैट इज वाइड बिकॉज इट कैन नॉट बी एनफोर्सेबल बाय लॉ। हम एग्रीमेंट करते हैं, वी आर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। एग्रीमेंट करते हैं कि भाई कहीं जाके चोरी करते हैं, तो दैट एग्रीमेंट इज़ वाइड। अब मैं जाता हूँ इसके साथ चोरी करने में, पीछे से भाग जाता हूँ, तो ये मेरे खिलाफ केस नहीं फाइल कर सकता है कि भाई एग्रीमेंट हुआ था इकट्ठी चोरी करेंगे, ये पीछे से भाग गए सर। ही कैन नॉट एनफोर्स दैट एग्रीमेंट बिकॉज दैट एग्रीमेंट इज इलीगल, ही कैन नॉट एनफोर्स दैट। सेक्शन 10 में ही लिखा है ना, फॉर ए लॉफुल कंसिडरेशन फॉर ए लॉफुल ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट ही लॉफुल नहीं हुआ तो एग्रीमेंट इज वाइड। So, in context of Indian Contract Act, so there are only 3 situations: wide, wideable, or And wide, contract. wide ab initio. वाइड एब इनिशियो कहीं डिफाइन नहीं किया हुआ, दैट है वाइड एब इनिशियो। Wide or wide ab initio same? नहीं, देयर इज अ डिफरेंस। आपने यू मस्ट हैव रेड डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन, हम पढ़ेंगे 64, पता नहीं कौन सी सेक्शन है, 56 है पता नहीं। समटाइम्स देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट, sometimes there is a contract, valid contract, but because of the act of God or because of certain circumstances, their performance cannot be possible. Now because of that, that contract becomes void.
कैनॉट नाउ, जब void हो गया ना फिर दोनों की लाइबिलिटी नहीं है परफॉर्म करने की. कंसेप्ट यही है कि void क्यों करना है, void ab initio क्यों करना है या voidable क्यों करना है परफॉर्मेंस के लिए, कि हु इज लीगली बाउंड टू परफॉर्म. So sir, there is no concept called invalid or illegal in context of Indian Contract Act. यस. Okay. दो ही है, void और voidable. Performance में आएगा यस, हमारा जैसे voidable. void ab initio कह रहे थे ना, वो कहीं डिफाइन नहीं किया, बट मोहरी बीबी में बताया हुआ है कि माइनर का जो माइनर का एग्रीमेंट है वो void है. इन माइनर केस इट इज void ab initio. void का मतलब हो गया ना, जैसे मैंने एग्जांपल दी डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन की, पहले तो कॉन्ट्रैक्ट था. द मोमेंट दिस सब्जेक्ट मैटर डिस्ट्रॉयज, सब्जेक्ट मैटर ही डिस्ट्रॉय हो गया. लेट्स सपोज मैंने गाना गाना था तो मैं बीमार हो गया, सब्जेक्ट मैटर डिस्ट्रॉय हो गया, आवर कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स void. पहले वैलिड था, बाद में void हो गया लेटर ऑन. माइनर के केस में क्या है, फ्रॉम द इंस्पेक्शन इटसेल्फ दैट इज void, देयर इज ए void ab initio. ये नहीं कि भाई जब पता चला तब void हुआ या जब मेजर हो गया तब void हुआ. नो, इट वाज void ab initio फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग. ठीक है, सो इसको थोड़ा सा देख लेना. एक मिनट से क्वेश्चन आंसर देखना क्विक सा ऐसे थोड़ा सा